I think we can start now. Uh, before getting into the talk, I will first ask Tarun, who is Umesh's student, to introduce Umesh a little bit. Hey everyone, I guess this group doesn't really need an introduction to Umesh, but Umesh is assistant professor at the Center for Ecological Sciences at the Indian Institute of Science, Bangalore. And he has been working on like this, the title of this talk says climate change and forest degradation and how it affects Himalayan biodiversity for almost the last 20 years. Sorry, for the last 15 years. And most of it has been, of this research has been in the Himalayas, namely Eagle Nest Wildlife Sanctuary. And I will let Umesh continue and tell us more about how Himalayan biodiversity is going to change. Thank you. Thanks, Tarun. This is what I'm going to talk about today is the effects of climate change and forest degradation on Himalayan biodiversity, and what we need to do to protect biodiversity in the face of these two very, very important threats to wildlife and habitats. And this is work that is not done just by me. It's work that's been done by our entire research group, and very, very critically, including the people on the ground in the field who've been helped set up this project and who have been working on this project for the last 13 or 14 years. Of course, this has been a long-term project, and so none of this would have been possible without a lot of support from various funding institutions, a lot of support from the Arunachal Pradesh Forest Department, and from the Indian Institute of Science, where I am now based. And a huge shout out to our field staff who are absolutely spectacular. They've been working with us since 2011, and they're just great company, amazing cooks, and great in the field. They're really, really highly skilled. And none of this that I'm going to talk about today would have been possible without their enthusiasm and their great commitment to this work. All right, let's begin by talking about what are the main threats to biodiversity today. आज जो species है, wildlife है, habitats है, सबसे बड़े threats क्या है उनको? Those are climate change and habitat loss. तो climate change तो सबको मालूम ही है कि धरती गर्म होती आ रही है from pre-industrial times, which is the 1850s, to today. On average, temperature has risen by 1.5 degrees Celsius. So average temperature 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है 1850 से, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से. ये ज्यादा लगता नहीं है, doesn't sound much that 1.5 degrees Celsius, but it actually causes a lot of disruption. ज्यादा एनर्जी होता है अर्थ के सिस्टम में, और ज्यादा एनर्जी की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे कि स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ये हरिकेन्स, इन सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा है. और दूसरा जो मेन जिसको हम ग्लोबल चेंज ड्राइवर्स बोलते हैं वो है हैबिटेट लॉस. जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ जंगल को काट कर या तो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जाता है या फिर किसी और प्रकार से जंगल को डिग्रेड किया जाता है. तो दैट इज हैबिटेट लॉस और हैबिटेट डेग्रेडेशन. तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के बारे में. अगर बात कर रहे हैं तो स्पीशीज जो है वो कितने टेम्परेचर सेंसिटिव है, और टेम्परेचर को अगर वो सेंसिटिव है इन द ईस्टर्न हिमालयस तो किस प्रकार से वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्लाइमेट चेंज को. तो अगर स्पीशीज है जो सिर्फ 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है, वो उसका टेम्परेचर नीश है, वो उसका टेम्परेचर जोन है, तो फिर क्लाइमेट चेंज के वजह से अगर टेम्परेचर उसी के रेंज में 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए तो उस स्पीशीज को क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा एक्सटिंक्ट ना होने के लिए. और दूसरा जो हम रिसर्च करते हैं दैट इज ऑन स्पीशीज आर नॉट फेसिंग ओनली क्लाइमेट चेंज, स्पीशीज आर नॉट फेसिंग ओनली हैबिटेट लॉस. कोई भी अगर स्पीशीज है वाइल्ड में तो इट इज फेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट लॉस कंबाइंड. तो हमको समझना बहुत जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस दोनों जब एक साथ असर करते हैं स्पीशीज पे तो किस प्रकार से असर करते हैं और हम क्या कर सकते हैं स्पीशीज को इन दोनों ग्लोबल चेंज ड्राइवर्स के असर से बचाने के लिए. तो पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के बारे में. तो
अभी हर एक स्पीशीज का रेंज होता है। ये दो स्पीशीज है ऑस्ट्रेलिया में, एक स्प्लेंडेड फेरी रेन और दूसरा सुपर फेरी रेन। दोनों बहुत सिमिलर है, दोनों की इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत सिमिलर है, दोनों एक ही टाइप की चीजें खाते हैं। और आप देख रहे हैं इनके रेंजेस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे जो रेंजेस है एक्सक्यूज मी, जो रेंजेस है वो सुपर फेरी रेन का रेंज जो है स्प्लेंडेड फेरी रेन के रेंज के साथ ओवरलैप नहीं करता। तो इन दोनों के बीच में जो रेंज बाउंड्री है, जो रेंज लिमिट है, वो किस लिए वहां पर है? तो हर एक स्पीशीज का तो रेंज होता है, तो किस वजह से उस रेंज को एक्सपैंड नहीं कर पाती है? जैसे कि अगर आप कोई स्पीशीज देखेंगे ईस्टर्न हिमालयस में, देखिए एक स्पीशीज है बुकुन लियोचिक्ला, उसका रेंज है 2 स्क्वायर किलोमीटर, पूरे विश्व में उसका रेंज 2 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वो 2 स्क्वायर किलोमीटर से बाहर एक्सपैंड क्यों नहीं कर पा रहा है? वो क्यों नहीं 20 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर पा रही? तो इसके लिए लोगों ने काफी सोचा है कि ये रेंज लिमिट किस वजह से होता है। क्या ये टेम्परेचर की वजह से है कि जो सुपर फेरी रेन है उसको जो कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर है वो पसंद है, और स्प्लेंडेड फेरी रेन को जो इंटीरियर एरियाज में टेम्परेचर है वो पसंद है? या फिर इज इट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज टू स्पीशीज दैट स्प्लेंडेड फेरी रेन एंड सुपर फेरी रेन आर competing so strongly that splendid fairy wren does not allow the super fairy wren to expand its range, and the super fairy wren does not expand the splendid fairy wren to expand into its range? तो यह क्या टेम्परेचर है कि कंपटीशन है? किस वजह से जो है रेंजेस जो है सेट किए जाते हैं? तो ये क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है रेंजेस को इन्फ्लुएंस करने में, तो आगे जब क्लाइमेट बदलेगा, आगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्पीशीज को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उन टेम्परेचर्स को टॉलरेट करने के लिए, या फिर मूव करना पड़ेगा अलग टेम्परेचर को। इसके बारे में मैं अभी हम लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो लोगों ने बहुत सोचा है, और चार्ल्स डार्विन ने कहा था बहुत बहुत पहले, 150 साल पहले, चार्ल्स डार्विन के हिसाब से क्योंकि ट्रॉपिक्स में इक्वेटर के पास स्पीशीज बहुत हैं, और जब आप इक्वेटर को छोड़कर पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो स्पीशीज की जो संख्या है, प्रजातियों की संख्या कम होते जाती है। तो डार्विन ने कहा कि ट्रॉपिकल एरियाज में इक्वेटर के पास क्योंकि स्पीशीज ज्यादा है, उनमें कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, और जब कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा तो उनके रेंजेस जो है कॉम्पिटिशन की वजह से सेट होंगी। तो स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के रेंज में एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों कंपीट कर रहे हैं। और डार्विन ने ये भी कहा कि जितना आप पोल्स की तरफ जाएंगे, जितना हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे, वहां पर जो सीजनैलिटी है, tropics are less seasonal, but the poles are very seasonal. Poles with very severe winters and warm summers, right? So temperature, because it is so seasonal and so variable, temperature should be determining where species are found as you go away from the tropics. फिर एक और बहुत मशहूर साइंटिस्ट है डैनियल जॉनसन। डैनियल जॉनसन ने आकर कहा 1967 में कि ट्रॉपिकल एरियाज में क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबिलिटी कम है, तो अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे तो समर और विंटर के बीच में 2 डिग्री या 3 डिग्री का फर्क है। तो बहुत कम सीजनैलिटी है, बहुत कम टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है ट्रॉपिक्स में। तो इस वजह से जो है स्पीशीज ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे, बिकॉज दे डोंट नीड टू इवॉल्व एनी जनरलाइज्ड रिस्पॉन्सेज टू सीजनल टेम्परेचर। तो ट्रॉपिक्स में जो है स्पीशीज आर फेसिंग very low seasonality, very little variability in temperature, and so those species in the tropics are actually temperature sensitive. Those species are adapted to very small temperature ranges. They are thermal specialists, and so climate change should affect those species more than it will affect species in temperate areas, because temperate areas में जो है species are adapted to surviving cold winters and warm summers, whereas tropical species they are adapted to a very small टेम्परेचर रेंज। तो ये दो ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स है कि डार्विन के हिसाब से competition should be determining why species have certain ranges and in the tropics, and Daniel Johnson says कि actually it's because species have very narrow thermal niche, very narrow temperature range that they can tolerate. तो tropics में जो है temperature will affect ranges. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये टेम्परेचर है कि कंपटीशन है, क्योंकि हमको मालूम है कि
ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एक एक 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी टेम्परेचर राइज हो चुका है। और आईपीसीसी जो है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बाय 2100 year 2100 global average temperature will be higher by 4.5 डिग्री सेल्सियस। 4 या 4.5 डिग्री सेल्सियस से जो है मीन और एवरेज टेम्परेचर बढ़ने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है ये ग्लोबल मीन टेम्परेचर्स की। तो ये जानना जरूरी है कि क्या टेम्परेचर जो है इंपॉर्टेंट है इन स्पीशीज के रेंजेस सेट करने के लिए, और ईस्टर्न हिमालयस में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्टर्न हिमालयस जो है आपका सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इन जगह इस रीजन में सॉरी इस रीजन में जो रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है वो 3 गुना ज्यादा है ग्लोबल एवरेज से। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है, तो ये जानना जरूरी है। और ईस्टर्न हिमालयस जो है, अभी आप ये ग्लोबल मैप देखिए, ईस्टर्न ये मैप जो है बर्ड स्पीशीज रिचनेस का है, मतलब हर एक जगह पर कितनी प्रजातियों की चिड़िया मिलती है, और जितना गाढ़ा रंग है, जितना डार्कर रेड होता है ये, उसका मतलब है कि नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज, प्रजातियों की संख्या ज्यादा है। और देखिए आप, मेन जगह जहाँ पर प्रजातियों की जनसंख्या ज्यादा है वो है साउथ अमेरिका, ईस्टर्न अफ्रीका और ईस्टर्न हिमालयस। तो ईस्टर्न हिमालयस में बहुत सारी चिड़िया की प्रजातियां हैं, चिड़िया ही नहीं, जो भी हो, आपका मैमल्स ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, जो भी है, ईस्टर्न हिमालयस इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट for species. So eastern Himalayas are not only very species rich or very biodiverse, they also are facing great degree of global warming. तो हमको अगर पता करना है कि हिमालयस में स्पीशीज के रेंजेस जो है वो टेम्परेचर की वजह से सेट होते हैं या कॉम्पिटिशन की वजह से सेट होते हैं, तो हमने ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया। अभी आप हिमालयस देखेंगे तो इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक ग्रेडियंट है। एबायोटिक मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है, तापमान ले लीजिए, ह्यूमिडिटी ले लीजिए, वो एनवायरनमेंट ईस्टर्न हिमालय से जाएंगे तो टू वेस्टर्न हिमालय जाएंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट है। और ये जो मैप है वो दिखाता है टेम्परेचर वेरिएबिलिटी एक साल में, तो मिनिमम टेम्परेचर टू मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है बिटवीन समर एंड विंटर बेसिकली। तो आप देखेंगे जितना लाल रंग होता है लद्दाख, इस एरियाज में देखेंगे तो द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज 45 डिग्री सेल्सियस, वेरी सीजनल हैबिट है। ये मीन टेम्परेचर नहीं है, दिस इज द डिफरेंस द टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर, राइट? So in summer, if the temperature in Ladakh is 10 degrees Celsius, and in winter the temperature is -35, then that difference in temperatures is 45 degrees Celsius, and that's why it gets this color. But if you look at these two locations in the Himalayas, in the east and in the west, तो यहाँ पर सीजनैलिटी कम है, यहाँ पर सीजनैलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर कम है, यहाँ पर एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर ज्यादा है। तो एक ग्रेडियंट है यहाँ पर जो सीजनैलिटी का ग्रेडियंट है, और उसके ऑपोजिट में जो है एक बायोटिक ग्रेडियंट है जो स्पीशीज रिचनेस और नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज का ग्रेडियंट है। तो ईस्टर्न हिमालयस में ये जो कलर है दैट इज कलर कोडेड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयस। और आप देखेंगे कि वेस्टर्न हिमालयस में यहाँ पर स्पीशीज की स्पीशीज के नंबर या प्रजातियों की संख्या कम है, यहाँ पर प्रजातियों की संख्या ज्यादा है। सो एक्चुअली seasonality in the eastern Himalayas is half as much as seasonality in the western Himalayas, but the number of species in the eastern Himalayas is double the number of species in the western Himalayas. तो अभी डार्विन और जैनसन का जो ये है हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा डार्विन के हिसाब से वेस्टर्न हिमालय जहाँ पर सीजनैलिटी ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए स्पीशीज पर, क्योंकि ये सीजनैलिटी ज्यादा है, दुगनी है ईस्टर्न हिमालय के हिसाब से। और वहां पर स्पीशीज की जनसंख्या स्पीशीज भी कम है, तो कंपटीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा वेस्टर्न हिमालयस में, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होगा स्पीशीज के रेंजेस सेट करने के लिए। और ईस्टर्न हिमालयस में अगर आप जाएंगे तो सीजनैलिटी कम है और स्पीशीज के नंबर जो है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर कंपटीशन डार्विन के हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए स्पीशीज रेंजेस सेट करने के लिए, और टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट कम होना चाहिए स्पीशीज रेंजेस के लिए।
तो अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज शुड अफेक्ट स्पीशीज इन द वेस्टर्न हिमालयाज मोर अकॉर्डिंग टू डार्विन, whereas climate change should affect species in the eastern Himalayas more according to Jansen. तो हमने क्या किया, दो जगह पर हमने स्टडी एस्टैब्लिश किया। एक है ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर 1500 किलोमीटर है। तो बहुत दूर है एक दूसरे से। ईगल नेस्ट में जो स्पीशीज की नंबर्स है वो डबल है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से, और सीजनैलिटी जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की है वो डबल है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो दो ऑपोजिट ग्रेडियंट्स है। तो एनवायरनमेंट में जो ग्रेडियंट है वो ईस्ट में सीजनलिटी कम है, वेस्ट में ज्यादा है, और जो बायोटिक ग्रेडियंट है नंबर ऑफ स्पीशीज वो ईस्ट में ज्यादा है, वेस्ट में कम है। तो हम लोगों ने क्या किया वहां पर, ऐसे हम लोग पहाड़ों में ट्रांजेक्ट लगाए, कुछ पाथ्स बनाए पहाड़ों में, और ये पाथ्स जो है वो लो एलिवेशन से हाई एलिवेशन तक जाते हैं। तो इन पाथ्स पर हम लोग चलकर बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो भी बर्ड किस लोकेशन पे मिला वो हम नोट करते हैं। और इसी पाथ पर, अगर ये एक पाथ है देखिए जिसको हम ट्रांजेक्ट बोलते हैं, तो इस पाथ पर हमने टेम्परेचर लॉगर्स लगाए हैं। ये जो बटन दिखाई दे रहे हैं आपको, दे आर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर every 10 minutes. So they're recording every 10 minutes की उस लोकेशन पर टेम्परेचर कितना था, इस लोकेशन पर टेम्परेचर कितना था। So you have on that transect multiple temperature loggers that are recording temperatures every 10 minutes. तो अभी हम क्या करते हैं, जब हम कोई पाथ पर चल रहे हैं तो मैंने ये स्पीशीज देखा फायर टेल्ड माइजोर्निस किसी डेट पर, और मैंने इसको इस लोकेशन पे देखा, तो उस दिन का मैक्सिमम और मिनिमम तापमान कितना था मैं इन दोनों टेम्परेचर लॉगर्स से के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस टेम्परेचर लॉगर से कितना डिस्टेंस था, इस टेम्परेचर लॉगर से कितना डिस्टेंस था। जब मैंने इसको देखा, सोचिए 12 बजे दोपहर को, तो 12 बजे दोपहर को यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, उसका एवरेज करके मैं उस बर्ड को जब मैंने देखा तो उस बर्ड को, वो बर्ड कौन से टेम्परेचर में था वो मैं पता कर सकता हूँ। और उसी दिन का मैं डेली मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर इस लोकेशन का जो एक्स का लोकेशन है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ये करते हैं दो बार, एक बार समर में एक बार विंटर में। तो समर में काफी स्पीशीज जो है, और ये तरुण इसका रिसर्च कर रहे हैं, तो काफी स्पीशीज जो है समर में हाई एलिवेशन ऊपर पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में ब्रीड करते हैं, नेस्ट करते हैं, अंडा देते हैं बच्चे। तो समर में हाई एलिवेशन में रहते हैं और विंटर में लो एलिवेशन में आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये चिड़िया जो है जो समर में हाई एलिवेशन पे रहता है और विंटर में लो एलिवेशन में आ जाता है, इज दिस मूविंग, क्या ये मूवमेंट इसलिए है कि the bird has to come down in winter so that it finds the same kind of temperatures that it has found in summer. तो अगर समर में उसको उसका ब्रीडिंग जो रेंज है समर में, अगर वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस है, और फिर विंटर में अगर वो वहां पर जो है टेम्परेचर कम हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या इज दिस बर्ड फोर्स्ड टू मूव डाउन टू अ लोअर एलिवेशन जहां पर टेम्परेचर उसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा। तो क्या ये टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि आप ग्राफ को पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन ये मिनिमम टेम्परेचर ये एक स्पीशीज है ब्लाइस्ट ट्राइकोपैन, और मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर समर और विंटर में प्लॉट किया गया है। तो इस पॉलीगॉन को देखिए, तो ये जो है समर में वो इस टेम्परेचर पे रहती है और विंटर में इन टेम्परेचर पर रहती है। तो जितना इन दोनों समर और विंटर के बीच में ओवरलैप आएगा, तो इसका मतलब ये होगा, अगर समर और विंटर टेम्परेचर में परफेक्ट ओवरलैप है, तो समर में भी वही टेम्परेचर पे रहता है और विंटर में भी वही टेम्परेचर पे रहता है, तो इसका मतलब ये स्पीशीज इतना मूव करता है कि उसको वही टेम्परेचर चाहिए समर और विंटर में। और अगर इन दोनों के बीच में ओवरलैप नहीं है, तो स्पीशीज इज अ टेम्परेचर जनरलिस्ट, वो इट कैन सर्वाइव इन वार्म एंड इन कोल्ड कंडीशंस। सो द मोर a species moves and the more the overlap between summer and winter temperatures, the more likely the species is a thermal generalist. It's a thermal specialist. It's a temperature specialist. उसको it cannot tolerate
एक्सट्रीम्स इन टेम्परेचर और वाइड फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, उसको या तो उसको वही टेम्परेचर चाहिए समर और विंटर में, तो उसको मूव करना ही पड़ेगा ऊपर से नीचे। और कुछ स्पीशीज है जो मूव नहीं करती है, वो थर्मल जनरलिस्ट होते हैं, वो टेम्परेचर जनरलिस्ट होते हैं, वो कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर दोनों टॉलरेट कर सकते हैं। तो हमको क्या मिला ये देखिए, ये 10 स्पीशीज है। तो हमने ये जो है ओवरलैप समर और विंटर के बीच में 10 स्पीशीज का ओवरलैप कैलकुलेट किया। ये 10 स्पीशीज ये 10 स्पीशीज ईस्टर्न हिमालयस में भी मिलते हैं और वेस्टर्न हिमालयस में भी मिलते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि ये जो ऊपर वाला चिड़िया है यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है, उसका नाम है चेस्टनट हेडेड टीसिया। तो चेस्टनट हेडेड टीसिया ईस्टर्न हिमालयस में भी मिलता है, चेस्टनट हेडेड टीसिया वेस्टर्न हिमालयस में भी मिलता है। तो हमको तो लगेगा कि ये तो स्पीशीज एक ही है, तो इसका जो टेम्परेचर टॉलरेंस होगा वो वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हिमालयस हो, एक ही होना चाहिए, क्योंकि स्पीशीज एक ही है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी एक ही होनी चाहिए। तो ये सभी 10 स्पीशीज जो है, जो समर और जो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं, वो सबका टेम्परेचर टॉलरेंस सेम होना चाहिए। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, तो ये हमारा थर्मल ओवरलैप है समर और विंटर के बीच में। तो जितना ये वैल्यू हाई होगा उतना ये पॉपुलेशन जो है थर्मल स्पेशलिस्ट होगा, क्योंकि उसको वही टेम्परेचर चाहिए समर और विंटर में। और जितना ये लो होगा उसका मतलब है वो थर्मल जनरलिस्ट है। ओवरलैप ज्यादा नहीं है समर और विंटर के बीच में, राइट। सो समर में वो वार्म टेम्परेचर ऑक्यूपाई करता है, विंटर में कोल्ड टेम्परेचर ऑक्यूपाई करता है। वो जनरलिस्ट है, वो झेल सकता है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। तो हमको क्या मिला, हमको रिजल्ट्स क्या मिले अपने इस रिसर्च से? ये मिला कि पॉपुलेशन जो है चेस्टनट हेडेड टीसिया का, वो ईस्टर्न हिमालय में जो ग्रीन डॉट्स है, ईस्टर्न हिमालय में वेस्ट से बहुत ज्यादा थर्मल स्पेशलिस्ट है। तो वेस्ट में जो पॉपुलेशन है इसी स्पीशीज के, वो जनरलिस्ट हुआ करते हैं। तो ईस्ट में जो पॉपुलेशन है वही स्पीशीज के, वो स्पेशलिस्ट है, थर्मल स्पेशलिस्ट है। तो ये ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल temperature spaces in the east and they occupy much larger temperature spaces in the west। और ये सभी 10 स्पीशीज के लिए ऐसा ही है। जिसका ड्यूमिना देखिए, ये जो स्पीशीज है उसका कुछ नीच ओवरलैप है समर और विंटर के बीच में, जो हाई है थर्मल स्पेशलिस्ट है। उसकी वही पॉपुलेशन ईस्ट में अगर आप वेस्ट में अगर आप देखेंगे, तो ये दो पॉपुलेशन है उसी स्पीशीज के जो डॉटेड लाइन से जुड़ी है। तो इसका जो थर्मल स्पेशलाइजेशन है वो वेस्ट में बहुत कम है। वही पॉपुलेशन उसी स्पीशीज का वेस्ट में जनरलिस्ट है और ईस्ट में स्पेशलिस्ट है। तो ये हमको पता चला अभी कि ईस्टर्न हिमालय में जो स्पीशीज है और जो पॉपुलेशन है वो थर्मल स्पेशलिस्ट है। तो ये प्रॉब्लम है। If you're a thermal specialist in the eastern Himalaya, right, and the eastern Himalayas are warming very fast, then you will have to do something to deal with climate change, right? Because if you're a thermal specialist, then you are not going to be able to tolerate increases in temperature without doing something. कुछ तो करना पड़ेगा उस thermally specialist species को climate change के साथ deal करने के लिए। तो ये ईस्टर्न हिमालयस में प्रॉब्लम है कि the species are thermal specialists. Now, it is not just climate change, right? That is causing the disruptions in biodiversity, that is climate change और habitat loss दोनों हो रहे हैं हिमालयस में, right? So these species will have to survive in a warmer mountain range, but also in a more degraded mountain range. तो ये हिमालय तो और गर्म होते जाएंगे, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के साथ साथ जो है आपका फॉरेस्ट जो है वो भी डिग्रेड हो रहा है। तो इन दोनों का जो जॉइंट रोल है, इन दोनों का जो अगर दोनों साथ में कुछ असर कर रहे हैं इन पॉपुलेशंस पर, तो क्या असर हो रहा है वो जानना जरूरी है। तो हमारा रिसर्च ग्रुप जो रिसर्च करता है वो करता है वन फॉर्म ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन कॉल्ड सेलेक्टिव लॉगिंग। सेलेक्टिव लॉगिंग ऐसा है कि आप राइट साइड पे जो देख रहे हैं इस पिक्चर का, दिस इज अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट पे किसी ने डिस्टर्बेंस नहीं किया, ह्यूमंस हैव नॉट डिस्टर्ब दिस फॉरेस्ट। तो आप देख रहे हैं जो कैनोपी है, पेड़ जो है बहुत घने हैं, पेड़ डेंस कैनोपी है। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो एक सेलेक्टिवली लॉग्ड फॉरेस्ट है। सेलेक्टिव क्यों और लॉग क्यों? लॉग का मतलब पेड़ काटकर उस जगह से निकालना।
और सेलेक्टिव मतलब सभी पेड़ काटे नहीं जाते हैं सेलेक्टिव लॉगिंग में, तो वही पेड़ काटे जाते हैं जिनके स्पीशीज जो है जिनका वुड जो है इंपॉर्टेंट है या हाईली वैल्यूएबल है, जैसे कि माइकेलिया डोल्सोफा एक स्पीशीज है, चाप जिसको बोलते हैं, उसका वुड बहुत कीमती है, तो उसको काट कर निकाला जाता है। या फिर जो स्पीशीज जो इंडिविजुअल ट्रीज जो बड़े बड़े हैं, फायरवुड के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा टिम्बर के लिए, तो उन स्पीशीज को उन इंडिविजुअल्स को निकाला जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे गैप्स हैं फॉरेस्ट में, और लॉगिंग के लिए रोड तो बनाना पड़ेगा क्योंकि रोड तो चाहिए वो टिम्बर निकालने के लिए, तो बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं सेलेक्टिव लॉगिंग की वजह से। तो इससे क्या असर होता है वो देखने के लिए हम वही रिसर्च कर रहे हैं ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहां पर बहुत पहले ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया था आर्मी का, जो एक ही रोड था तवांग के बॉर्डर तक, चाइना के बॉर्डर तक, तो उस रोड को आर्मी जो है मेंटेन कर रहा था इस एरिया के थ्रू। और वहां पर आर्मी के प्रेजेंस की वजह से रोड मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा बहुत सारे लेबर कैंप्स थे, और इन लेबर कैंप्स ने सेंचुरी के अंदर में काफी जगहों पर लॉगिंग किया है, सेलेक्टिव लॉगिंग किया है, तो पेड़ों को काट कर निकाला है। तो हमारी जो स्टडी एरिया है 2000 मीटर अबव सी लेवल है, 2000 मीटर अबव सी लेवल। तो लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं वो प्राइमरी फॉरेस्ट है। प्राइमरी मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, कोई पेड़ काटे नहीं गए हैं। तो वहां पर जो ट्री डेंसिटी है, हर एक हेक्टेयर में अगर आप पेड़ों की गिनती करेंगे तो 200 पेड़ मिलेंगे आपको पर हेक्टेयर। और जो राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं वो लॉन्ग फॉरेस्ट है, वहां से पेड़ काट कर निकाले गए हैं, और वहां पर जो है पेड़ों की जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ट्रीज की, वो घट जाती है, वो ओनली 75 ट्रीज पर हेक्टेयर है। और इसके वजह से जो है कैनोपी खुल जाता है, बहुत सारा सनलाइट नीचे आता है, और उसके वजह से काफी चीजें होती हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो देखिए आप 12 AM मतलब मिडनाइट से लेकर 11:30 PM का आप ये टाइम है। टाइम में अगर आप टेम्परेचर देखेंगे प्राइमरी फॉरेस्ट में, वो ग्रीन में आ रहा है, वो बढ़ रहा है। 12-1 बजे तक जो टेम्परेचर है प्राइमरी फॉरेस्ट में वो करीब 18 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, और फिर रात को घट जाता है, रात को करीब 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वो टेम्परेचर जो है प्राइमरी फॉरेस्ट में। लेकिन लॉन्ग फॉरेस्ट में जो एवरेज टेम्परेचर है वो प्राइमरी फॉरेस्ट से ज्यादा है। तो लॉन्ग फॉरेस्ट प्राइमरी फॉरेस्ट से गर्म है, प्राइमरी फॉरेस्ट से और भी गर्म होता है, और ये एवरेज टेम्परेचर है। ऑन एवरेज लॉग फॉरेस्ट इज 1 डिग्री to 2 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन प्राइमरी फॉरेस्ट। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन लॉग फॉरेस्ट आर 6 डिग्रीज हॉटर देन मैक्सिमम टेम्परेचर इन प्राइमरी फॉरेस्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से ह्यूमिडिटी जो है, ये ह्यूमिडिटी का ग्राफ है, डेली ह्यूमिडिटी का ग्राफ है। तो ह्यूमिडिटी जो है करीब 15-20% कम है लॉग फॉरेस्ट में, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी घटता है, उसके वजह से जो है काफी इंसेक्ट पॉपुलेशन पर असर पड़ता है, क्योंकि इंसेक्ट जो है दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एनवायरनमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ जो है वो सिर्फ दिखा रहा है कि इंसेक्ट्स जो है वो किस प्रकार से प्राइमरी और लॉन्ग फॉरेस्ट में डिफरेंस हो रहे हैं। तो अगर 2 पॉइंट बहुत पास में है तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो इंसेक्ट के जो हमारे सैंपल्स हैं, जो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं इंसेक्ट के, तो वो दोनों की कॉम्पोजिशन सिमिलर है। और अगर 2 पॉइंट बहुत दूर है, इसका मतलब है कि इसका जो सैंपल का जो कॉम्पोजिशन है वो यहाँ के सैंपल से कॉम्पोजिशन बहुत दूर है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर शायद बहुत सारे हमारे स्पाइडर्स मिले और बहुत कम फ्लाइज, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फ्लाइज मिले और बहुत कम स्पाइडर्स, तो ये दोनों पॉइंट बहुत दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। तो प्राइमरी फॉरेस्ट जो है ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। प्राइमरी फॉरेस्ट में ज्यादा हमारे जो बर्ड्स खाते हैं, हेमिप्टेरा जो बग्स है, अरेक्निडा जो स्पाइडर्स है, लेपिडोप्टेरा जो कैटरपिलर्स है, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के जो बर्ड्स खाते हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा है प्राइमरी फॉरेस्ट में। और जो डिप्टेरा जैसे फ्लाइज, कोलम्बोला, फैस्पेटोडिया जो अलग ऑर्डर्स हैं, जो ज्यादा ये चिड़िया नहीं खाते हैं, कम खाते हैं इनको, वो लॉग फॉरेस्ट में ज्यादा है। तो लॉग फॉरेस्ट में जो जनसंख्या है इन इन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रे
जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज है बर्ड्स के, वो घट जाते हैं लॉग फॉरेस्ट में। तो इसके वजह से जो है एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से जो है उसका असर पड़ता है रिसोर्सेज पर। तो अगर ऐसे असर पड़ रहे हैं रिसोर्सेज पर, तो एक्सपेक्टेशन तो होना चाहिए कि ये बर्ड पॉपुलेशन को भी कुछ ना कुछ इन बर्ड पॉपुलेशन पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2023 एक्चुअली आज तक हम लोगों ने 6 जो है प्लॉट्स डिमार्केट किए हैं प्राइमरी एंड लॉग फॉरेस्ट में। तो प्राइमरी फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन से आउटलाइन है और लॉग फॉरेस्ट जो है वो रेड से आउटलाइन है। और ये टोटल एरिया जो हम सैंपल कर रहे हैं वो 9 हेक्टेयर है प्राइमरी एंड लॉग फॉरेस्ट में। तो आप जो देख रहे हैं जो व्हाइट डॉट्स है वो एक एक मिसनेट का लोकेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं हर साल अप्रैल मई में जो अर्ली ब्रीडिंग सीजन है हर एक प्लॉट पर जाते हैं और मिसनेट्स लगाते हैं। और वो मिसनेट में दिखाता हूँ वो क्या है। मिसनेट्स लगाते हैं और ये मिसनेट्स हम 3 दिन तक ऑपरेट करते हैं और इनमें चिड़िया फंस जाती है और हम रिंग लगाते हैं, एक नंबर्ड रिंग लगाते हैं चिड़िया पर। और फिर 3 दिन एक प्लॉट पर करने के बाद दूसरे प्लॉट पर शिफ्ट करते हैं, वहां 3 दिन करते हैं और ऐसे 3 दिन करते करते 18 दिन जो है उसमें एक 6 प्लॉट हम लोग कवर कर लेते हैं। तो टोटल जो है मिसनेट यहाँ पर 185 185 मिसनेट्स वी ऑपरेट एवरी ईयर इन बैचेस एंड वी बीन डूइंग दिस सिंस 2011। तो दिस इज व्हाट अ मिसनेट लुक्स लाइक। लेफ्ट साइड पे जो है वो मिसनेट है, तो उसको हम बैम्बू के पोल्स पर खींचकर उसको लगा देते हैं जंगल में विद वेजिटेशन इन द बैकग्राउंड। जंगल जो है बैकग्राउंड में रहता है और ये मिसनेट जो है चिड़िया को दिखाई नहीं देता है। कभी कभी हमको भी नहीं दिखाई देता है। मेरे जानते हुए कि यहाँ पर मिसनेट है जाने के बावजूद मैंने अपने कई बार मिसनेट के अंदर मैं घुस चुका हूँ। तो ये सिर्फ चिड़िया को ही नहीं काफी मतलब इनविजिबल होते हैं फॉरेस्ट में। और चिड़िया जो है इनके अंदर जाकर फंस जाते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चिड़िया फंसी हुई है मिसनेट में, तो इसका हम काफी जेंटली निकालते हैं और एक रिंग लगाते हैं जो बिल्कुल हार्मलेस है, चूड़ी की तरह है, बैंगल की तरह है। वो रिंग लगाते हैं इन पर और हर एक रिंग पर एक यूनिक नंबर होता है, तो उनको मालूम है कि और फिर रिंग लगाकर हम छोड़ देते हैं। और ये देखिए आप एक चिड़िया है जिस पर रिंग लगाकर हमने छोड़ दिया है एंड इट्स आउट इन द हैबिटेट डूइंग व्हाटएवर बर्ड्स डू। तो फिर अगले साल आकर हम फिर वही रिंग लगाएंगे और रिंग लगाने के बाद हम देखेंगे कितने जो है चिड़िया रिंग लगाए हुए पहले साल पिछले साल के रिंग लगाकर जो रिकैप्चर हो रहे हैं और कितनी चिड़िया है जो फ्रेश न्यू कैप्चर हो रहे हैं। और उस हिसाब से हम इन चिड़िया की सर्वाइवल रेट्स जो है वो पता कर सकते हैं। तो आज तक देखिए ये कितना रिच बायोडाइवर्सिटी है। और अरुणाचल प्रदेश का 135 स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है हम लोगों ने नेट किए हैं इन एरियाज में। और ये याद रखिए ये सिर्फ स्पीशीज जो है जो जंगल के नीचे वाले भाग में रहते हैं वो हम पकड़ सकते हैं। जो अंडरस्टोरी स्पीशीज है जो कैनपी में रहते हैं, जो हमेशा पेड़ के ऊपर में रहते हैं, वो मिसनेट्स में फंसते नहीं है क्योंकि मिसनेट का जो हाइट है वो सिर्फ 2.5 मीटर है। तो 2.5 मीटर से ऊपर जो चिड़िया रहती है वो मिसनेट में फंसती नहीं है। तो अभी हम जो है चिड़िया का हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं, लेकिन हम इनका सर्वाइवल रेट्स पता कर सकते हैं चिड़िया का। और हम पता कर सकते हैं कि ये सर्वाइवल रेट जो है हर साल से दूसरे साल घट रहा है कि बढ़ रहा है। और कैसे एस्टिमेट करते हैं हम इसको, वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो अगर एक पॉपुलेशन है चिड़िया का और 80% चिड़िया जो है एक साल से दूसरे साल तक सर्वाइव करते हैं, तो उस चिड़िया का सर्वाइवल रेट 0.8 है। तो उस पॉपुलेशन का सर्वाइवल रेट 0.8 है। तो अगर 50% सर्वाइवल रेट है और 50% जो इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन में वो एक साल से दूसरे साल तक सर्वाइव करते हैं, तो इसका मतलब है कि सर्वाइवल रेट 0.5 है। और मोर्टालिटी रेट जो मरने का चांस, मरने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 0.5 है। तो 0.8 अगर सर्वाइवल की चांस है तो 0.2 जो है वो मोर्टालिटी का चांस होगा, मरने का चांस होगा। 20% चांस ऑफ डाइंग, 80% चांस ऑफ सर्वाइविंग। सो वी एस्टिमेट दैट इन दिस वे। और फिर हम देख सकते हैं कि ये सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। 2011 से आज तक ये सर्वाइवल रेट जो है इसको क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो क्या हो सकता है सर्वाइवल रेट्स को, ये हम देखते हैं। अभी हम याद रखिए हम 2000 मीटर्स पर जो है वो हम ट्रैक कर रहे हैं इन पॉपुलेशंस को 2011 से, राइट। 2000 मीटर्स एलिवेशन पर। तो ये अगर पहाड़ है तो हमारे जो सैंपलिंग एरियाज है वो इस एलिवेशन पर है
और इस एलिवेशन पर कुछ सैंपलिंग, कुछ स्पीशीज के एलिवेशनल रेंज जो है, एलिवेशनल रेंज जो है, जैसे कि ये ब्लू फ्रंटेड रॉबिन हो गया, उसका एलिवेशन रेंज शायद 1000 मीटर से 2000 मीटर तक है। तो यहाँ पर गर्म है, यहाँ पर ठंडा है, तो इस स्पीशीज के लिए इसका 2000 मीटर जहां पर हम सैंपलिंग कर रहे हैं, ये कोल्ड एज पर है, इसके कोल्ड एज पर है, और ये नीचे वाला भाग जो है यही इसके वार्म एज पर है। तो ये पाई जाती है, ये चिड़िया सिर्फ 2000 टू 2000 मीटर तक जो है इसकी रेंज है पहाड़ में, और हम सैंपल कर रहे हैं जहां पर उसका रेंज जो एज है वो उसका कोल्ड एज है, क्योंकि ऊपर जितना ऊपर आप जाएंगे पहाड़ में उतना ज्यादा ठंडा होगा। और कुछ स्पीशीज जो है वो हायर एलिवेशन स्पीशीज है, जिनका एलिवेशनल रेंज जो है वार्म एज पे है। तो इसका ये येलो कोटेड पलवेटा सोचिए, जिस एग्जांपल के तौर से इसका एलिवेशनल रेंज है 2000 मीटर टू 3000 मीटर, राइट। तो ये लोअर लिमिट जो है वो वार्म एज है, हायर लिमिट जो है वो कोल्ड एज है इसके रेंज का। तो हम जहां सैंपल कर रहे हैं उनमें से कुछ स्पीशीज सैंपल हम कर रहे हैं कोल्ड एज पर, और कुछ स्पीशीज हम सैंपल कर रहे हैं वार्म एज पर। तो क्या हो सकता है, और हम देख रहे हैं कि ये सर्वाइवल ट्रेंड जो है 15 स्पीशीज के 2011 टू 2018 का ये एनालाइज किया है। और अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो ये हो रहा है कि स्पीशीज का रेंज जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप सोचिए 1980 में ये ब्लू फ्रंटेड रॉबिन जो है, जो लो एलिवेशन स्पीशीज है, उसका रेंज था 1000 टू 2000 मीटर। आज 2023 में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, सोचिए 1 डिग्री ज्यादा हो गया, और इस स्पीशीज को चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, उसका फेवरेट टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो आज 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1000 और 2000 मीटर्स के बीच नहीं है, वो अभी 1200 एंड 2200 मीटर्स के बीच में। तो इस पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, उसी टेम्परेचर पे रहने के लिए रेंज को शिफ्ट करना पड़ेगा उसको। तो हम ये हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि स्पीशीज जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना जो एलिवेशनल रेंज है, जिन एलिवेशंस पे पाई जाती है, जिन हाइट्स पर पाई जाती है पहाड़ों में, वो हाइट्स जो है धीरे धीरे ऊपर चलती जा रही है, ऊपर बढ़ती जा रही है। तो जो स्पीशीज नीचे से 2000 मीटर्स की तरफ आ रहे हैं, तो हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अभी ये जो है अच्छे हैबिटेट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो उसको 2000 मीटर जो है अच्छा हैबिटेट होगा। और अगर वो अच्छा हैबिटेट होगा तो उसका सर्वाइवल रेट जो है बढ़ना चाहिए 2000 मीटर्स पर। लेकिन जो हाई एलिवेशन स्पीशीज है, जैसे कि ये येलो वाला स्पीशीज है, वो 2000 मीटर्स पे उसका लोअर लिमिट है। तो अगर वो और ऊपर जाएगा तो वो 2000 मीटर्स छोड़ के जा रहा है, तो उसका सर्वाइवल रेट 2000 मीटर्स पे घटना चाहिए, और फिर उसका पॉपुलेशन 2000 मीटर्स पे मिलना ही नहीं चाहिए कुछ कुछ सालों बाद, और उसका पॉपुलेशन जो है वो हायर एलिवेशन पे मिलना चाहिए क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हमको क्या मिल रहा है, अगर आप ये 15 स्पीशीज देखेंगे तो ओवर टाइम यहाँ पर ये ईयर है और ये सर्वाइवल रेट है आपका। तो ओवर टाइम कुछ स्पीशीज के सर्वाइवल रेट बहुत ही ज्यादा घट रहे हैं। ये प्राइमरी फॉरेस्ट में है जो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो ये देखिए ब्लैक फेस वॉबलर एक है जिसका सर्वाइवल रेट करीब 80% से सिर्फ 8-9 सालों में 80% से 20% डिक्लाइन हो चुका है। सो सर्वाइवल रेट हैज गॉन फ्रॉम 80% to 20%. Similarly, with other species, lots of species are showing decline, very steep declines in survival rates. But there are some species that are showing increases in elevation rates. So, प्राइमरी फॉरेस्ट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सभी जो है हायर एलिवेशन स्पीशीज है, ये 2000 मीटर्स छोड़कर और ऊपर जा रहे हैं, तो इनका सर्वाइवल रेट जो है हमारे साइड पर घट रहा है। ये स्पीशीज जो है वो लोअर एलिवेशन स्पीशीज हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे स्टडी एरिया में आ रहे हैं, तो उनका सर्वाइवल रेट जो है वो धीरे धीरे ज्यादा होते जा रहा है। तो हाई एलिवेशन स्पीशीज और लो एलिवेशन स्पीशीज का जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये प्राइमरी फॉरेस्ट में है। और लॉग फॉरेस्ट में अगर आप देखेंगे जो ब्राउन लाइन्स है, तो सर्वाइवल रेट ज्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं। जो भी उनका स्पीशीज का एलिवेशनल रेंज हो, सर्वाइवल रेट जो है ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये हमको ये रिजल्ट जब हमने देखा
कि प्राइमरी फॉरेस्ट में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लो एलिवेशन स्पीशीज का सर्वाइवल रेट ज्यादा बढ़ते जाएगा हर साल, और हाई एलिवेशन स्पीशीज का सर्वाइवल रेट जो है वो घटते जाएगा हर साल। लॉग फॉरेस्ट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ताजुब वाली बात थी। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है, जब तक हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये स्टडी किया, उनका नाम है अक्षय भारद्वाज। तो उन्होंने जाकर चिड़िया के हर नेट पर एक टेम्परेचर लॉगर लगाया है और ह्यूमिडिटी लॉगर लगाया है, जो हर 10 मिनट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो अगर एक चिड़िया आकर 10:30 बजे फंस जाए इस नेट में, तो मुझे पता है कि उस टाइम में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इस चिड़िया का क्या था। तो ये येलो वाला स्पीशीज देख लीजिए, अगर आप 40 इंडिविजुअल पकड़ा आपने इस स्पीशीज पर, और आपने देखा कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये चिड़िया, तो आपका ह्यूमिडिटी जा सकता है 50% से 100%, टेम्परेचर जा सकता है 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पीशीज जो है प्राइमरी फॉरेस्ट, ग्रीन प्राइमरी फॉरेस्ट में करीब 8 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस प्रेफर करती है, और ह्यूमिडिटी प्रेफर करती है करीब 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है ये चिड़िया टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के एनवायरनमेंट में। तो कुछ स्पीशीज जो है जो ठंडा ड्राई एरियाज प्रेफर करेंगे, तो वो यहाँ पर मिलेंगे आपको लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी में, कोल्ड ड्राई एरियाज। तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइमरी फॉरेस्ट में जो है कितना कौन सा रेट ऑक्यूपाई करती है ये स्पीशीज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, और लॉग्ड फॉरेस्ट जो ग्राउंड में है वो कैसे कहाँ ऑक्यूपाई करती है, कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और जैसा आपको मालूम है टेम्परेचर जो है लॉग फॉरेस्ट में बढ़ जाता है, तो आप देख रहे हैं कि लॉग फॉरेस्ट में इसका टेम्परेचर रेंज जो है वो ऑक्यूपाई करता है ज्यादा टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर में, और ह्यूमिडिटी कम होती है लॉग फॉरेस्ट में, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा और ह्यूमिडिटी कम एरिया ऑक्यूपाई करेगी ये स्पीशीज जो है डिग्रेडेड फॉरेस्ट में, लॉग फॉरेस्ट में। तो फिर हम इन दोनों चीजों को देखकर एक ओवरलैप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो प्राइमरी फॉरेस्ट में चिड़िया पसंद करती है, जिस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में रहना पसंद करती है, क्या वही जगह उसको लॉग फॉरेस्ट में मिलती है कि नहीं। और आप देख रहे हैं कि कुछ ही ओवरलैप है प्राइमरी और लॉग फॉरेस्ट में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, काफी अलग है, ये बहुत अलग है यहाँ से। तो ओवरलैप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये ओवरलैप जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बीच में वो प्रेडिक्ट करता है, वो बताता है कि स्पीशीज जो लॉग फॉरेस्ट में है उनकी सर्वाइवल रेट जो घट रही है या बढ़ रही है। जहां पर ओवरलैप ज्यादा है और लॉग फॉरेस्ट में भी स्पीशीज को वही एनवायरनमेंट मिल जाता है जैसे तैसे जो प्राइमरी फॉरेस्ट में है, तो वहां पर सर्वाइवल रेट्स ज्यादा घट नहीं रहे हैं। जो स्पीशीज ऐसे हैं जिनमें ओवरलैप बहुत कम है, जो प्राइमरी फॉरेस्ट में उसका एनवायरनमेंट है वो लॉग फॉरेस्ट में बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसका उस स्पीशीज का सर्वाइवल रेट घट रहा है ओवर टाइम। तो वही ये ग्राफ है कि जहां पर ओवरलैप बहुत ज्यादा है वहां पर सर्वाइवल रेट जो है वो घट नहीं रहा है। जहां पर ओवरलैप कम है तो सर्वाइवल रेट जो है नेगेटिव में जा रहा है, तो मतलब कम हो रहा है सर्वाइवल रेट का। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्राइमरी फॉरेस्ट और लॉग फॉरेस्ट का अगर आप तालमेल देखें, जो असर होता है क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिग्रेडेशन का, अगर आप जॉइंट असर देखेंगे तो इससे साफ जाहिर है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ये स्पीशीज शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, लेकिन जब शिफ्ट करते हैं तो या तो वो पॉपुलेशन प्राइमरी फॉरेस्ट में आ सकता है या फिर वो पॉपुलेशन लॉग फॉरेस्ट में आ सकता है। और अगर प्राइमरी फॉरेस्ट में आए तो ऐसा है कि वो सर्वाइवल रेट जो है मेंटेन कर पाएगा, वो पॉपुलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में वो मेंटेन कर पाएगा। लेकिन अगर वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट में आए तो शायद जो है वो पॉपुलेशन ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्वाइवल रेट जो है उनकी घटेंगे लॉग पॉपुलेशन में, तो वो पॉपुलेशन शायद लॉग फॉरेस्ट में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हिमालयस में, ईस्टर्न हिमालयस में, कि हमको चाहिए ऐसे कि प्राइमरी फॉरेस्ट चाहिए सब एलिवेशंस पर कंजर्वेशन के लिए,
ताकि जब ये स्पीशीज मूव करेंगे तो उनको प्राइमरी फॉरेस्ट मिले हायर एलिवेशन पर, जहां वो सर्वाइवल रेट जो है मेंटेन कर पाएंगे। और अगर ये वही पॉपुलेशन यहाँ नीचे से रिवर वैली में यहाँ पहुंचे जहाँ डिग्रेडेशन है, तो वो पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी वहां पर। तो क्लाइमेट चेंज के लिए एक कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए लो एलिवेशन से हाई एलिवेशन तक प्राइमरी फॉरेस्ट होना बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, ताकि स्पीशीज मूव कर पाए। और ये काफी कंसर्निंग है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि पहाड़ का शेप ऐसे होता है, पहाड़ का शेप इतना सिंपल नहीं है। ईस्टर्न हिमालय में अगर आप देखेंगे तो 1800 मीटर और 2400 मीटर के बीच में काफी फ्लैट एरियाज पाई जाती है। तो उन फ्लैट एरियाज में जो बस्तियां हैं, उन फ्लैट एरियाज में जो है फार्मलैंड है, एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो नीचे से जब आ रहे हैं ये चिड़िया, तो 1800 मीटर और 2400 मीटर के बीच में अगर इनको ये डिग्रेडेड एरियाज मिलेंगे, तो शायद वो पॉपुलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगी। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? नंदिनी है जिन्होंने ये सीड लैब सेटअप किया है, नंदिनी और एक बहुत बड़ा टीम जो है, रिसर्चर्स और डिजाइनर्स, नेचर एजुकेटर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सिंचुंग गांव के बुगुन कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरुआत की कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीशीज है, बुगुन लियोचिक्ला जिसे कहते हैं, उसकी ग्लोबल रेंज जो है पूरे विश्व में, इसकी रेंज जो है 2 स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ। और 2 स्क्वायर किलोमीटर में जो जनसंख्या है इस प्रजाति की, जो स्पीशीज का पॉपुलेशन साइज है, वो 20 इंडिविजुअल से ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत ही रेयर स्पीशीज है, एक्सट्रीमली रेयर स्पीशीज है, और ये सिर्फ पाई जाती है सिंचुंग गांव के बुगुन कम्युनिटी के ट्रेडिशनल लैंड्स पर। तो हम एक बहुत बड़ा टीम था, बहुत लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दी है कि ये जो लैंड्स है ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बुगुन लियोचिक्ला के लिए नहीं, लेकिन क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए और बाकी स्पीशीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है यहाँ पर, जैसे कि रेड पांडा है, हाथी है, एशियाटिक ब्लैक बेयर है, काफी सारे पेड़ है जैसे हिमालयन व्यू जो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इनको बचाने के लिए इस जगह को किसी तरह प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, किसी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो काफी बातचीत के बाद, बहुत ही जेनरोसिटी के साथ, बहुत ही काइंडनेस के साथ बुगुन सिंचुंग विलेज बुगुन कम्युनिटी रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया सिंचुंग के गांव वालों ने, जो है 17 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा। और पूरा रेंज जो है ये बुगुन लियोचिक्ला का जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो इस कम्युनिटी के रिजर्व के अंदर है। और अभी जो है वो ऐड करना चाहते हैं और 15 स्क्वायर किलोमीटर इस कम्युनिटी रिजर्व को, तो टोटल एरिया जो है कम्युनिटी रिजर्व का 32 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। और ये जाएगा आपका 1200 मीटर ऑल्टीट्यूड से लेके डायरेक्ट 3200 मीटर ऑल्टीट्यूड तक। तो 2000 मीटर्स का जो ऑल्टीट्यूडल ग्रेडियंट है, उसमें प्राइमरी फॉरेस्ट जो है वो बचेगा इस छोटे से जगह पर। तो जब स्पीशीज क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर जाएंगे, तो उनको प्राइमरी फॉरेस्ट मिलेगा हर हैबिटेट, हर एलिवेशन पर। तो यही मैं एंड करना चाहूंगा। Thank you very much to the Seed Lab for inviting me to deliver this talk, and I will be glad to take any questions. Can I ask a question? Can you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead. Yes. So these altitudinal migrations in response to temperature, like, does this also happen at a finer temporal scale? Like, even in winter, maybe there are a few days that are warmer than normal, or some summer days that are colder than normal. Do you think the birds track that kind of temperatures also? Yes, they do. And I think Tarun is actually Tarun Menon, who's a student in our research group, PhD scholar in our research group, is currently investigating this. But we do know that when there are extreme events at high elevations, there's a very strong
heavy snowfall, for instance. And there are ordinarily birds that would stay at high elevations even during the winter. A lot of populations will move down when there is high snowfall or a storm to escape those extreme temperatures. They'll come to lower elevation temporarily and then go back. Yes, thank you. Hi, Umesh. Hi. Hi, Umesh. I had a question. So, जो चिड़िया अभी यहाँ पे प्राइमरी फॉरेस्ट में रहते हैं, जो ऊपर जिनको प्राइमरी फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, जैसे आपने बोला बुगनविलिया चिकला के लिए ऊपर जाने से भी प्राइमरी फॉरेस्ट मिलेगा, तो उनको बचाने से अच्छा है। लेकिन मानो जगहें ऐसी है जहाँ पे ऊपर प्राइमरी फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, और हम जानते हैं कि प्राइमरी फॉरेस्ट को मतलब एक जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट या कुछ है उसको प्राइमरी फॉरेस्ट का उतना हेल्थ में लेके आने के लिए काफी टाइम लगेगा, काफी बहुत जमाने लगेंगे। तो ऐसे जगहों में कैसे बचाया जा सकता है इन स्पीशीज को जो मूव करते हैं? तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के माहौल में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो क्लाइमेट कनेक्टिविटी कहते हैं इसको, कनेक्टिविटी बिटवीन हैबिटेट्स दैट कैन सपोर्ट स्पीशीज। तो अगर हम हमारे ये मूवमेंट जो है सिर्फ एलिवेशन में ही नहीं, लैटिट्यूड में भी जा रहे हैं। तो स्पीशीज आर मूविंग देयर रेंजेस अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, दे आर मूविंग टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, क्योंकि वही टेम्परेचर पे रहने के लिए उसको पोल्स की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज देखेंगे तो दे आर ऑल आइलैंड्स, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। सो द स्पीशीज विल रीच द नॉर्दर्न एंड ऑफ दैट प्रोटेक्टेड एरिया, और उसके बाद उसको जाने के लिए और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो one of the things that people are showing is that active restoration of habitats is actually something that is very, very successful even in the short term. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 1000 और 2000 मीटर के बीच में प्राइमरी फॉरेस्ट है हर जगह और 2500 और 3500 के बीच में प्राइमरी फॉरेस्ट है हर जगह, लेकिन बीच में कहीं बीच में खेती है या बीच में बस्ती है, तो it does not mean that the entire thing needs to be regenerated. What you need are bridges between those two habitats. You need are corridors that will allow the movement of species. क्योंकि अगर वो कॉरिडोर ही नहीं रहेंगे तो ये पूरा सभी कुछ को रीजनरेट करना तो नामुमकिन है। I mean, there are all sorts of other social, political, economic considerations to take into account when all of these decisions are made. But there is the possibility of active restoration, creating these corridors, and it does not mean that the active restoration needs the forest to go back to the primary forest stage. Even active restoration with a habitat that is 10 years old, 20 years old is effective as a corridor. तो ये वेस्टर्न घाट्स में जो है टी.आर. शंकररामन और उनकी टीम जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने दिखाया है कि एक्टिवली रिस्टोर्ड फॉरेस्ट में जो है रेन फॉरेस्ट बर्ड्स की कम्युनिटी जो है काफी सिमिलर होती है एक्टिवली रिस्टोर्ड फॉरेस्ट में। वैसे वरना अगर आप पैसिवली रिस्टोर करने के लिए छोड़ देंगे उस फॉरेस्ट को, तो उसी हिसाब से उसी रेट से जो है बर्ड स्पीशीज कम्युनिटीज विल नॉट रिकवर। थैंक यू। उमेश, आई हैव अ क्वेश्चन। यस उमेश सुन रहे? हाँ सुनाई दे रहा है राजू। ओके, सो जब ये जो भी बर्ड्स ऊपर एलिवेशन में जा रहे हैं, सो एंड उनका जो भी फूड का जो नीश है, राइट, वो लोअर एलिवेशन में जो भी उनका जो इंसेक्ट का कंपोजिशन है, डू वी एक्सपेक्ट द सिमिलर इंसेक्ट कंपोजिशन इफ वी गो अप? अगर ऊपर में जाएंगे तो उसी तरह का उनका फूड का जो नीश कंपोजिशन एक ही रहेगा, क्योंकि वो जरूरी है ना उनके सर्वाइवल के लिए। अगर इवन इफ इन द प्राइमरी फॉरेस्ट होने के बाद भी अगर वही खाना उनको नहीं मिला तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? बिल्कुल सही। ये आपका फिर से वही जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का मामला आ गया यहाँ पर। अभी अगर स्पीशीज स्पेशलिस्ट है और कुछ ही प्रकार की चीजें खा सकती है, और अगर पेड़ हो और फ्रूट्स, वो चिड़िया जो है सिर्फ फ्रूट्स खाती है, और पेड़ जो है उसी रेट से ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऊपर मूव शिफ्ट नहीं कर पाएंगे जिस रेट से चिड़िया जो है, जो मोबाइल स्पीशीज है, वो शिफ्ट कर पाएंगे रेट्स।
तो इन इंटरैक्शंस को समझना भी जरूरी है, और हमारी जो जानकारी है इंटरैक्शंस के बारे में अभी बहुत ही कम है। तो अगर इस चिड़िया को करना पड़ेगा 200 मीटर, फल वाले पेड़ लोग उतने रेट से शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो इन इंटरैक्शंस को क्या होता है वो हम अभी इसमें हम रिसर्च शुरू कर रहे हैं। पूरे पूरे वर्ल्ड में अभी इस पर रिसर्च शुरू किया जा रहा है। लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि वो अगर वेदर इट्स इंसेक्ट्स, प्लांट्स, बर्ड्स, मैमल्स, ट्रॉपिकल माउंटेन्स में जो शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है ट्रॉपिकल माउंटेन्स में, वो 93% टेम्परेचर को ट्रैक करता है रिगार्डलेस ऑफ विच स्पीशीज इट इज। सो इट्स ऑलमोस्ट 100% ट्रैकिंग। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने की वजह से आपको 100 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तो एक्चुअली all these species are shifting their ranges up by 93 meters. So it's actually I see. almost 100% tracking of populations. I see. I have a question. So, you were saying that primary forests are necessary across different altitudes, right? So, but at higher elevations, does it mean that then having a smaller area of primary forest is much more important than having a larger area of primary forest, or the same amount of area of primary forest much at a lower ranges? Yes, this is a problem because if the rate of climate change and the magnitude of climate change, just the amount of the temperature increase is very, very high, then species are going to move up into areas that have lower space and therefore fewer area of primary forest, and therefore the amount of the population size that a higher elevation primary forest can support will be lower than the population size that a low elevation primary forest can support, because there's more area of primary forest at low elevation than at high elevation. So as birds move up, because on average mountain area reduces as you go up, there is the danger that the population sizes of these species, even though you have primary forest, might go below what is called minimum viable population size. So if the minimum number of individuals that you need to sustain a population is 100 individuals, that requires 100 hectares of forest. And then when you move up, you get only 80 hectares of primary forest. So it can support only 80 individuals. Then that population will slowly go extinct. The other problem that's happening is that in many parts of the world, the mountains are not very high, and the Himalayas go up to phenomenal heights. But you have mountain ranges that go up to 1400, 1500 meters above sea level. Species have moved up, and because there's nowhere else to go, because they've just moved up, their temperature specialists, they have to move up. They've reached the tops of these mountains. There's nowhere else to go, and these populations have gone extinct. So these are very, very important concerns. Some of this, depending on how we collectively, as the species, as humanity, change our behaviors, through intergovernmental cooperative policies, will have an effect on whether this happens or not, whether this becomes something that is inevitable, or whether this can be mitigated to some extent. Okay, thanks. Are there any more questions? Okay, I will then announce the next talk. So the next talk will be on the 15th of June by Adira Anle. She is from the Imperial College London, and she's going to speak about designing educational tools for snakebite management in indigenous contexts of Northeast India. It's a project
that she did with Nandini. And the link for the talk will be sent shortly. Well, Rohit, thank you so much, and thank you everyone at the Seed Lab, and thank you so much for joining today. All the best, and